السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ بلند و بالا عمارتیں، وقت کی ضرورت، کمپوزٹ اسٹیل اسٹرکچر کی وکالت۔ سول انجینئرز کانفرنس سے وزیر آئی ٹی سری دھر بابو کا خطاب، ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونے کا دیا مشورہ۔ بی سی طبقے کو 42% تحفظات کے آرڈیننس کے فیصلے پر بی سی تنظیموں کا وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر۔ بی آر ایس نے اس کو انتخابی حربہ قرار دیا۔ کویتا نے ریل روکو پروگرام کیا ملتوی۔ اندرما کینٹین کے ذریعے 5 روپے میں ناشتہ، جی ایچ ایم سی کی اسکیم کو منظوری۔ چندران گٹے میں ایک کیب ڈرائیور کا قتل، ممنوعہ ڈرگس میں ملوث ہونے کا شبہ۔ اور آن لائن بیٹنگ ایپس میں دھوکہ، ایک خاتون کی خودکشی۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں، چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و صنعتیں سری دھر بابو نے ریاست میں تعمیرات اور عصری طرز کی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے، مصنوعی ذہانت کا استعمال اور سیمنٹ و کنکریٹ کی جگہ کمپوزٹ اسٹیل اسٹرکچر کی وکالت کی ہے۔ ایسوسی ایشن آف
कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स हैदराबाद सेंटर की जानिब से इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज में तामीरात की नई टेक्नोलॉजी पर एक 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना 3.5 साल के अंदर 5 लाख इंदिरमा मकानात तकसीम करेगी। शहरी इलाकों में बुलंद से बुलंद इमारतें वक्त की ज़रूरत बन गई हैं। नेक्स्ट जनरेशन हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से इन्होंने कहा है कि माली साल 2024-25 के दौरान तामीरात पर 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। बुलंद इमारतों का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा है कि 280 इमारतें तामीर हुई हैं जिनकी बुलंदी 100 मीटर है। ऐसी ही 250 बुलंद इमारतें तकमील के मराहिल में हैं। इन्होंने सीमेंट कंक्रीट के बजाय कंपोजिट स्टील कंस्ट्रक्शन को अपनाने के फ़वायद बताते हुए कहा है कि इस पर 30% कम खर्च और तामीर का वक्त 40% कम होगा। मजबूती म्यार में कोई समझौता नहीं हो सकता। इन्होंने नौजवान सिविल इंजीनियर से कहा है कि वो बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ बिलखुसूस मसनूई ज़हानत से ख़ुद को आम आहंग करें और तामीरात में इसका मौसर इस्तेमाल करें। इस कॉन्फ्रेंस में तामीराती शोबे के कई सरकर्दा कायदीन शिरकत कर रहे हैं। बीसी तबके के तंजीमों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। बीसी तबके बहबूदी तंजीम के सदर आर कृष्णैया की सदारत में बीसी लीडर्स ने वज़ीर आला से मुलाकात की है। इन्होंने मजालिस मुकामी इंतखाबात में बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का काबीना इजलास में फ़ैसला लेने पर खुशी का इजहार किया और वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया है। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात देने का फैसला कांग्रेस पार्टी का है जिसका क्रेडिट कविता लेने की कोशिश कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी का फैसला रियासती हुकूमत ने लिया है। इस फैसले के पीछे खरगे और राहुल गांधी का मकसद है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस से समाजी इंसाफ मुमकिन है। बीसी तबके के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर बीआरएस की रुकन कौंसल कविता का इससे क्या ताल्लुक़ है? हमने जो काम किया है कविता इसका सहरा लेना चाहती है। कविता को देखकर अवाम हंस रही है। केसीआर ने 10 साल में कुछ नहीं किया, फिर भी कविता बीसी का राग अलाप रही है। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक पीसीसी सदर के केशव राव ने कहा है कि 45 साल के बाद मजालिस मुकामी में 42% तहफ़्फ़ुज़ात का ख्वाब पूरा हुआ है जो कांग्रेस के ज़रिए ही मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का बीआरएस पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में असेंबली के साथ साथ काबीना में इस पर बहस हुई है कि केशव राव ने कहा है कि बीसी बिल को नए शेड्यूल में शामिल करने का मौका है। पंचायत राज एक्ट के अंदर तरमीम करने की सहूलत भी है। बिल के मामले में कानून के साथ जारी काम करेंगे। मेहरबानी करके इसमें रुकावट पैदा ना करें। बीआरएस पार्टी कायदीन इस पर सियासत ना करें। बीआरएस पार्टी के साबिक वज़ीर व रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बीसी तबके की तहरीक की वजह से हुकूमत पर दबाव बढ़ गया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन के मुताबिक 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही मजालिस मुकामी इंतखाबात मुनक़्क़िद करें। इस मामले में बीआरएस पार्टी ने असेंबली और बाहर जद्दोजहद की थी। साबिक तजुर्बे की बुनियाद पर हमको बास शक व शुबहात भी हैं। अब हुकूमत क्या करेगी मालूम नहीं है। 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही इंतखाबात मुनक़्क़िद करें। बीसी तबके के वोट हासिल करने के लिए ये ऐलान किया गया है। इन्होंने कहा है कि इसके लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश नहीं की जा रही। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल व जागृति की सदर के कविता ने कहा है कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर ऑर्डिनेंस लाने का हुकूमत का ऐलान बीसी तबके जागृति की कामयाबी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि अवामी जद्दोजहद के ज़रिए दबाव डालने पर हुकूमत ने यह फ़ैसला लिया। कविता ने कहा है कि मजालिस मुकामी इंतखाबात से पहले 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर ऑर्डिनेंस लाने का वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया, जिसके पेश नज़र 17 तारीख को रेल रोको प्रोग्राम को मुलतवी करने का फ़ैसला लिया गया है। कविता ने कहा है कि ऑर्डिनेंस जारी होने के फौरी बाद तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल मुमकिन है। इस पर शक व शुबहात ज़ाहिर करते हुए इन्होंने कहा है कि सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ये ऐलान तो नहीं किया गया।
कांग्रेस ने जो वादे किए थे इससे तवज्जो हटाने के लिए ये ऐलान तो नहीं किया गया। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जो पावर पॉइंट पेश किया वो री-पावर पॉइंट था। इन्होंने जस्टिस घोष कमीशन से मुलाकात करते हुए कालेश्वरम से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात फराहम की। तफसीलात देने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मिडीगड्डा, अनाराम, संदेला बैरेज से मुताल्लिक 6 बार काबीना में मंजूरी ली गई। इससे मुताल्लिक दस्तावेज़ात कमीशन के हवाले किए गए और 3 बार असम्बली में इससे मुताल्लिक मंजूरी ली गई। इससे भी ज़्यादा तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत इन तफसीलात को हमारे हवाले नहीं कर रही। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने कमीशन को मुकम्मल तफसीलात नहीं दी। इन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी की तरफ से पावर पॉइंट पेश किया जाएगा। हरीश राव ने कहा है कि पानी के इस्तेमाल और पानी की तकसीम में फ़र्क वज़ीर आला को मालूम नहीं। हुकूमत जो पावर पॉइंट पेश किया है इसमें वज़ीर आला ने झूठ बोला है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि जुबली हिल्स असम्बली हल्के में जुमा के दिन 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम के तरक्याती कामों का सग बुनियाद रखा गया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तमाम मसाइल की यकसोई की जाएगी। तेलंगाना तश्कील के बाद हैदराबाद शहर की बस्तियों और कॉलोनियों की तरक्की को भूल गए, सिर्फ अपने हल्के की तरक्की के बारे में काम किया जा रहा है। हैदराबाद हुदूद के असम्बली हल्कों की तरक्की करने के लिए मनसूबा तैयार किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि अगर किसी इलाके में मसाइल हैं तो मुकामी अहदेदार, अवामी नुमाइंदे या फिर वज़रा के इल्म में लाएँ। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बाज़ अफराद ज़िमनी इंतख़ाबात के पेश नज़र यहाँ आ रहे हैं। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि तेलंगाना में त्यौहार का माहौल है, बीसी तबका खुश है, झूम रहा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा कांग्रेस हुकूमत ने किया है। इन्होंने कहा है कि कामारेड्डी में जो वादा किया था इस पर अमल किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत अवाम मुखालिफ फ़ैसले लेकर आ रही है। KCR ने 10 साल में अक़लियतों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। वो KCR से ज़्यादा सीनियर हैं, दम हैं तो उनसे मुबाहिस करें। बीसी तबके के साथ KCR ने तंग नज़री का मुजाहरा किया। हम KCR की तरह नहीं हैं। बीसी तबके के साथ इंसाफ करने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। इन्होंने कहा है कि बीसी तबका कांग्रेस पार्टी के साथ ताउन करे। इन्होंने कहा है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी टिकट किसी को भी दे, पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। GHMC की स्टैंडिंग कमेटी ने 5 रुपए में नाश्ता या 5 रुपए ब्रेकफास्ट स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इंद्रम्मा कैंटीन में हर दिन 5 रुपए में नाश्ता फराहम किया जाएगा। ये स्कीम हरे कृष्णा मूवमेंट चैरिटेबल फाउंडेशन के इश्तराक से शुरू की जाएगी, जबकि बाकी 14 रुपए फ़ी नाश्ते का खर्च GHMC बर्दाश्त करेगी। GHMC हेडक्वार्टर में मुनक्किदा इजलास की तदारत मेयर गदवाल विजया लक्ष्मी ने की है, जिसमें कमिश्नर RV कृष्णन और स्टैंडिंग कमेटी अरकान ने भी शिरकत की। इस मंसूबे पर सालाना 15 करोड़ 33 लाख रुपए का खर्च आएगा। गोशामहल हल्के का मुतनाज़ा बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के पार्टी से इस्तीफे को बीजेपी क़यादत ने कबूल कर लिया। राजा सिंह का इस्तीफ़ा कबूल होने के बाद रुकन असम्बली की बीजेपी से बुनियादी रुकनीत मनसूख हो गई है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने राजा सिंह के मकतूब इस्तीफे के जवाब में लिखा कि राजा सिंह की जानिब से पेश करदा इस्तीफे को फौरी असर के साथ कबूल किया जाता है। इन्होंने लिखा कि राजा सिंह ने अपने मकतूब इस्तीफे में जिन वजूहात का जिक्र किया है वो गैर मुताल्लिक़ हैं। राजा सिंह के इल्ज़ामात पार्टी के उसूलों और आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते। उनका कहना था कि बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की हिदायत के मुताबिक ये पैगाम इरसाल किया जा रहा है कि आपका इस्तीफ़ा फौरी असर के साथ तस्लीम किया जाता है। राजा सिंह ने जो बीजेपी के रियासती सदर के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे, उनके बजाय रामचंद्र राव को पार्टी का रियासती सदर बनाने पर नाराज़ होकर पार्टी से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था। हैदराबाद की तारीख़ी मदीना होटल की ब्रांच का दुबई में इफ्तिताह अमल में आया। दुबई के हूर लॉन्स में मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मदीना होटल की इस ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी शहरियों और अमारात में मुकीम हैदराबादियों की कसरी तादाद भी मौजूद थी।
مدینہ ہوٹل گروپ کے ذمہ دار فیصل جابری نے مہمانوں کا استقبال کیا. انہوں نے بتایا کہ حیدرآبادیوں اور بالخصوص حیدرآبادی روایتی کھانوں کے شوقین اور بعض-اوق افراد کے لیے حیدرآباد کی مشہور ڈشز اپنی روایتی ذائقے کے ساتھ یہاں سربراہ کی جائیں گی. حلقہ اسمبلی چار مینار میں ترقیاتی کام جاری ہیں. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر چار مینار رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے گولی پورہ مسجد محمد شکور کے قریب CC روڈ کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا. رکن اسمبلی کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ روپے کی لاگت زیر تعمیر اس روڈ کی تعمیری کام اگلے 4-5 دنوں میں پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گے، جس سے عوامی آمد و رفت میں سہولت ہوگی. انہوں نے قلوت پلے گراؤنڈ، محبوب چوک اور غازی بنڈا کے BT روڈ کے تعمیری کاموں پر اظہار خیال کیا. حیدرآباد میں بونالو تہوار کے پرامن انعقاد کے لیے تیاریاں جاری ہیں. اس سلسلے میں حیدرآباد پولیس کمشنر CV آنند نے لال دروازے میں واقع تاریخی مہاکالی مندر کا دورہ کیا. اپنے دورے کے دوران CV آنند نے مندر کمیٹی کے چیئرمین اور ارکان کمیٹی سے بونال کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے قدیم روایت پر عمل کرتے ہوئے مندر میں درشن کیے اور انتظامی کمیٹی سے تبادلہ خیال بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ بونال تلنگانہ کا ایک اہم اور تاریخی تہوار ہے. اس کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. GHMC کمشنر نے بھی مندر کا دورہ کیا. اس موقع پر CV آنند کے ساتھ دیگر پولیس حکام بھی موجود تھے. تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو نے حیدرآباد سائبرآباد کے گچی بولی ویمنز پولیس اسٹیشن میں تعینات سب انسپکٹر KY وینو گوپال کو 25,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. ذرائع کے مطابق ملزم سب انسپکٹر نے شکایت کنندہ سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنی والدہ کا نام ویمن پولیس اسٹیشن گچی بولی میں درج ایک مقدمے سے خارج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے عوض 25,000 روپے رشوت دینی ہوگی. اینٹی کرپشن بیورو کے حکام نے اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے سب انسپکٹر وینو گوپال کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا. واقعے کی مکمل چھان بین جاری ہے. تلنگانہ ضلع محبوب آباد کے گورو منڈل کے بھوپتی پیٹ گاؤں میں 3 بیٹوں نے اپنی 75 سالہ بوڑھی ماں کو سڑک کے کنارے چھوڑ دیا. متاثرہ خاتون کی شناخت ونگم پیٹ کی رہائشی بی بھدرما کے طور پر ہوئی ہے. شوہر کی وفات کے بعد بھدرما نے اپنی اراضی تینوں بیٹوں میں تقسیم کر دی تھی. سب سے بڑے بیٹے وینکنا کی موت 10 سال قبل ہوئی تھی. عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھدرما مزدوری کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی. جیسے جیسے صحت خراب ہوتی گئی ان کے بیٹے سدھاکر، رمیش اور یاکسوامی نے باری باری ان کا خیال رکھنا شروع کیا. تاہم بڑی بہو کے اعتراض کے بعد اس کے بیٹے ماں کو بھوپتی پیٹ کے ریتو ویدیکا مرکز کے قریب سڑک کنارے چھوڑ کر چلے گئے. یہ واقعہ جب مقامی پولیس کے علم میں آیا تو انہوں نے فوری مداخلت کی. دیہاتیوں کی موجودگی میں تینوں بیٹوں اور ان کی بیویوں کی کونسلنگ ہوئی. کونسلنگ کے بعد بھدرما کو بہوؤں نے گھر واپس بلا لیا. اس واقعے کے بعد دیہاتیوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا، جبکہ پولیس نے خاندان کو آئندہ اس طرح کے غیر انسانی سلوک سے باز رہنے کی ہدایت دی ہے. حضرت سید شاہ اسد حسین ہارونی مدنی سلطانی مرزائی چشتی و القادری المعروف حضرت دولہے پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے 45ویں عرس کی 4 روزہ تقاریب کا جمعہ 11 جولائی سے درگاہ شریف واقع آستانہ سلطانی و اسدی اندرون درگاہ حضرت مرزا سردار بیگ صاحب میں آغاز ہوا. سجادہ نشین متولی مولانا سید شاہ نظام الدین چشتی ہارونی کے مطابق ہفتہ 12 جولائی کو بعد نماز عصر برآمدگی سندل، بعد نماز عشاء محفل سماع و سندل مالی، اتوار 13 جولائی کو بعد نماز مغرب چراغاں و محفل سماع، پیر 14 جولائی کو قرآن خوانی، منگل 15 جولائی کو پیران چیرو شادہ میڈیکل کالج میں واقع حضرت خواجہ سید صدیقی حسین ہارونی کے 75 سالہ عرس پر ان تقاریب کا اختتام عمل میں آئے گا. حیدرآباد نیمز کے قدیم عمارت کے آرتھو بلاک کے قریب واقع ایک مین ہول سے ایک نومولود لڑکے کی لاش برآمد ہوئی، جس کے بعد اسپتال عملے اور مریضوں میں سنسنی پھیل گئی. واقعہ اس وقت سامنے آیا جب اسپتال کے ڈرینیج کے مین ہول کی صفائی کی جا رہی تھی. علاج کے لیے اسپتال سے رجوع ہونے والی کسی نامعلوم حاملہ خاتون پر شبہ کیا جا رہا ہے.
पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है और मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया। साथ ही खातून की शिनाख्त के लिए अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज का जायजा भी लिया जा रहा है। वाक़े के बाद अस्पताल के अंदरूनी निज़ाम और सिक्योरिटी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। बुरी आदतों और बुरी सोहबतों का अंजाम भी बुरा ही होता है। चंद्रायनकुटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक 25 साला कैब ड्राइवर अब्दुल अजीज उर्फ अत्थर का सफ़ाकी से कत्ल कर दिया गया। जुमा की इब्तदाई सातों में एक सुनसान इलाके में इनकी लाश दस्तयाब हुई। इसके जिस्म पर तेज़ धारी हथियारों से ज़रब पहुंचाई गई। नाश के करीब नशावर इंजेक्शन की खाली सिरिंज पाई गई हैं। एसीपी सुधाकर ने बताया है कि मकतूल नशा करने वाली टोली के साथ रात भर रहा होगा और इस टोली के अरकान ने ही इसका कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिद ने बताया है कि उनका बेटा रात का खाना खाकर अपनी बीवी के घर उमर कॉलोनी बाबानगर जाने के लिए निकला था। घर ना पहुंचने पर तशवीश हुई। बाद में पुलिस के जरिए इसकी लाश मिलने की इत्तला मिली। इंस्पेक्टर गोपी ने बताया कि डॉग स्क्वाड को तलब किया गया। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों का भी जायजा लिया जा रहा है। मकतूल को एक कमसिन लड़का भी है। बताया जाता है कि मकतूल का मुजरिमाना रिकॉर्ड था और ममनुआ ड्रग्स की मुंतकली में ये मुलविस रहा था। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स में धोखा खाने के बाद एक खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम करने वाली 27 साला गंगा अनुषा ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की आदी बन गई और लाखों रुपए हार गई। नुकसान की तलाफी के लिए इसने रिश्तेदारों और जानने वालों से भारी खर्च ले लिया। खर्च का बोझ बढ़ने से जहनी दबाव का शिकार होकर उसने एक सुसाइड नोट लिखकर ये इंतहाई कदम उठाया। उसने लिखा कि बैटिंग में लाखों रुपए हारने के बाद वो बदनामी के खौफ से ये कदम उठा रही है। अनुष्का का शौहर वेंकट बाबू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन दोनों को 4 साला बेटा भी है। कोकटपल्ली के हबीबनगर में गैर मजाज तामीरात की इन्हदामी कार्रवाई अमल में लाई गई। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA ने कोकटपल्ली के हबीबनगर में वाक़े गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। ये गैर मजाज तामीरात हबीबनगर के ड्रेन नाले से मुत्तसिल वाक़े थीं। इस मौके पर किसी भी हंगामे से निपटने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों की तैनाती अमल में लाई गई थी। हुक्काम का कहना है कि मानसूनी बारिश के दौरान गैर मजाज तामीरात के बाइस इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। बताया जाता है कि यह इन्हदामी कार्रवाई मुकामी अवाम की शिकायत पर अमल में लाई गई। इन्हदामी कार्रवाई के तहत नाले पर तामीर करदा कंपाउंड वॉल बशमूल NRC गार्डन की दीवार को मुनहदिम कर दिया गया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत राजेंद्र नगर पुलिस और SOT राजेंद्र नगर ने गांजा सरबराह करने वाली एक 7 रुकनी बैन रियासती टोली को बेनकाब करते हुए टोली के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मफरूर बताया जाता है। इस टोली के कब्जे से तकरीबन 109 किलो गांजा, 6 मोबाइल फ़ोन, 9,700 रुपये नकद और 2 कारें जब्त कर ली गईं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर जोन के मुताबिक ये टोली ओडिशा से बरह विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, पुणे को सड़क के रास्ते गांजा मुंतकिल कर रही थी, जिन्हें ORR के पास तलाशी के दौरान पकड़ लिया गया। गिरफ्तार किए गए 6 के 6 अफराद पुणे के रहने वाले हैं। इनमें एक खातून भी शामिल है। मुलजमीन के नाम प्रशांत गणेश पुस्कर उर्फ नाना, लता गणेश जाधव, सचिन दिलीप रिनवारे, रोहन पांडुरंग पवार, राहुल बाबूराव धारवारे। ओडिशा का सप्लायर पवनदीप मफरूर बताया गया है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर वो किसी मुश्तबा हरकत व सकनात को देखें तो टोल फ्री नंबर 1908 पर कॉल करें। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद।
जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। बुलंद व बाला इमारतें, वक्त की ज़रूरत, कंपोजिट स्टील स्ट्रक्चर की वकालत। सिविल इंजीनियर्स कॉन्फ्रेंस से वजीर IT श्रीधर बाबू का खिताब। टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने का दिया मशवरा। BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के ऑर्डिनेंस के फैसले पर BC तंजीमों का वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। BRS ने इसको इंतखाबी हरबा करार दिया। कविता ने रेल रोको प्रोग्राम किया मुलतवी। इंद्रम्मा कैंटीन के जरिए 5 रुपए में नाश्ता, GHMC की स्कीम को मंजूरी। चंद्रायन गुट्टे में एक कैब ड्राइवर का कत्ल, ममनुआ ड्रग्स में मुलविस होने का शुबा। और ऑनलाइन बिटिंग एप्स में धोखा, एक खातून की खुदकुशी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।